Now, the showdown between Fadnavis and Nawab Malik has only escalated, with Fadnavis levelling some sensational allegations against Maharashtra Minister. Fadnavis, in a news briefing, in fact, has dropped the Diwali bomb that he promised last week against Nawab Malik, alleging that Malik is linked to the underworld. Fadnavis had claimed that Maharashtra Minister bought prime property in Kurla for throwaway prices from 2 blast convicts. Fadnavis put out documents to back his claims and said that Nawab Malik and his son did business with those who bled Mumbai. Fadnavis has claimed that this land deal was done when Malik was a minister, and he was completely aware of their background, of their terror background at that point. He's claimed that he will submit all evidence to authorities and also to the NCP chief Sharad Pawar to act against his minister Nawab Malik. Remember, this latest face-off comes after Malik had targeted Fadnavis and his wife, claiming that they were linked to drug peddlers. Malik had put out pictures on social media as well of Devendra Fadnavis and an alleged drug peddler, to which Fadnavis flatly refused. यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी थी? All right, let me quickly cut across to Kamlesh Sutar joining us live for more on that. Kamlesh, these are some serious allegations that's been leveled against Nawab Malik. The former Maharashtra Chief Minister, Devendra Fadnavis, says Malik did a land deal with 2 terror convicts. He names them as well, says that while Nawab Malik was a minister, he very well was aware of their terror background, yet bought prime property in Kurla for throwaway prices. First of all, if these allegations are true, what's the punishment that you could look at? Go on, take it away. Nabila, there are 2 possibilities. One, the political ramifications of the allegations made by Devendra Fadnavis, and secondly, the legal aspect to it. First, the most important part is Devendra Fadnavis bringing to the fore the links. He's alleging that there were links between 2 persons, one who was a convict in 92 serial blast, and the other one who was a close aide of Hasina Parker, sister of underworld Don Dawood Ibrahim. First, he says that the 2 owned this property. The other one had the power of attorney, and Salim Patel, who was the driver and bodyguard of Hasina Parker, sister of Dawood Ibrahim, also known as Hasina Apa in the underworld circuit. The main business was to grab land, and this person had the power of attorney, irrevocable power of attorneys to buy and sell lands on their behalf. And so this person brought that land, which was in the name of Sardar Shah Wali Khan, who I mentioned as one of the convicts in the Mumbai blast case. Now, Nawab Malik, Fadnavis alleges, bought these properties at throwaway prices in the name of his company Solidus, where he was also part of it. Now the company deal was done in the name of Nawab Malik's son. The other part is, which Fadnavis raises, is that how come a minister, a senior minister, this was the deal happened between 2003 and 2005. How a senior minister like Nawab Malik, who was then the minister and then had to resign after the Justice Sawant Commission, dealt with a convict whose land was in the power of attorney of someone who was a close aide of Dawood. Now, second question that he raises was that usually in cases, properties in TADA cases, where the stringent TADA Act, properties of accused as well as convicts are confiscated by Kamlesh, do stay with us. I'm going to quickly cut across to the man who's in the spotlight, Nawab Malik, who's addressing a press conference on the same matter. Let's take a listen. दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध है।
मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट जमीन खरीद ली कौड़ी मोल में। देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए। आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो 1984 में वहां इमारत बनी, गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सीवाला को डेवलपमेंट राइट देके वहां पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसाइटी वहां पर है। उसके पीछे जो जमीन है उस पे बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है, और हमारा एक गोडाउन वहां पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई। बहुत सारे पत्रकार होंगे, जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी, मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी, और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं।
किराएदार के नाते उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। हमने मालकिन से ली। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया। सरदार वली खान का उल्लेख करने का काम किया। शायद देवेंद्र जी को उनके मुखबिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी घर है। पिछले 70 सालों से उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान के जो पिताजी थे, वो गोवा वाला परिवार के एक वॉचमैन की तरह वहां पर काम करते थे। और जब हमने संपत्ति गोवा वाला परिवार से ली, तो 300 मीटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चढ़ा लिया था। जब प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करने गए, ये बातें सामने आई और हमने 300 मीटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रिएट किया था, वो उनसे सरेंडर करने का काम किया। आज भी वो हमारे घर के पीछे ही 2 प्रॉपर्टी पीछे वो सारी जगह है। जो गोडाउन है वो भी हमारा वहां पर है। जो आगे इमारत है उसमें भी जो 4 दुकानें उस समय हमारी थी, वो भी है, आज वहां पे किराए पे लगाई हुई है। जब प्रॉपर्टी ली तो आगे जो गोवा वाला बिल्डिंग है, जिसमें 4 दुकानें, 8 दुकानें नीचे, 8 घर ऊपर, ये सारी संपत्ति उस समय हमारी हुई। उसमें से बाद में एक बियर बार था। मुसलमान होने के नाते समाज का दबाव होने लगा कि आपके संपत्ति में बियर बार है। वो बियर बार को भी ज्यादा पैसा देके हमने सरेंडर करवाने का काम किया। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो, और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहां के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। जो व्यक्ति 62 साल जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है। कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे सारे कागजात हैं। जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैम्प ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो जरा ढंग से बोलो। हमें लगता है झूठ बोलकर नवाब मलिक, जो पिछले 7 साल से आपसे लड़ रहा था, पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। हाँ, वॉचमैन ने अपना नाम उस पर चढ़ा लिया था। उस वॉचमैन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने का काम किया, ये सच्चाई है। जहां तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको
आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना तो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। त्या ना हो दाखवा, मी कुठल्याही गैरप्रकारे कुणाच्यावर दबाव निर्माण करून कुठलीही संपत्ती घेतलेली नाही, कुठल्याही अंडरवर्ल्डच्या माणसाकडून कुठल्याही संपत्ती कवडी मोल घेतलेली नाही। भाडे करू असताना मालकी हक साठी जे पैसे त्या मालकींनी मागितले ते पैसे आम्ही दिले। वॉचमॅननी स्वतःचा नाव चढून घेतला होता, त्या वॉचमॅनला नाव काढण्यासाठी आम्ही पैसे दिलेले आहे। याच्यात माझ्या कुठल्याही अंडरवर्ल्डशी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही। मी कवडी मोल जमीन कुठेही घेतलेली नाही। या उलट What Devendra Fadnavis has said, Malik's in fact slamming Devendra Fadnavis, says that in fact Fadnavis has links with the underworld. He does not. He goes on to speak of how he is going to come up with a massive allegation against Fadnavis in a little while from now. In fact, he is going to drop a big bomb tomorrow. That's what he says. Tomorrow 10 a.m. he is going to be speaking extensively about Devendra Fadnavis's links with the underworld. Of course, he brushes off all the allegations, saying it's unfounded, it's not true. He's been tarnished. Let me cut across exactly what a little earlier Devendra Fadnavis said in his press conference. यानी सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी थी? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों से ये जमीन खरीदी गई थी। आप बताइए क्या हकीकत है, क्या सच है? मेरे चाचा जी ये प्रॉपर्टी में आगे टेनेंट थे। ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं भी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से टेनेंट हो गया। फिर मैंने 2005 में मेरे जो लैंडलॉर्ड थे सलीम पटेल जी, उनसे मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है। ये प्रॉपर्टी के अंदर मोर देन 400 टेनेंट्स हैं। जब हमने लैंड खरीदा था, जब इसके अंदर पूरी टेनेंट की लिस्ट हमने प्रॉपर्टी के अंदर लगाई है, तो वो पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर टेनेंटशिप आपको एक्चुअल बात मालूम पड़ जाएगी। जो आप सलीम पटेल जी की बात कर रहे हैं, यही इल्जाम देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं कि जिन लोगों के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध हैं, जिन्होंने मुंबई में गलत काम किया था, उनसे प्रॉपर्टी खरीदी गई है। ये देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो से 2005 में मैंने खरीदी है। तब 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का
भाड़ा पावती का पैसा जमा करने देती। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नवाब मलिक को इस बात की खबर ना हो कि जमीन किसके पास है, और ऐसा तो नहीं है कि जमीन को जब्त होने से बचाने के लिए खरीदी गई और वो भी कम दामों में खरीदी गई। अब ये सब तो आरोपी की बात है। मैंने जब लैंड खरीदा है तो मैंने रेडी रेकनर वैल्यू से पूरा टेनेंट लिस्ट लगा के पूरी ओपन स्पेस, कवर्ड स्पेस सब उसमें एंटर करके ही लैंड खरीदा हुआ है। उसमें से कोई भी चीज छुपाया हुआ नहीं है, पेपर्स आप देख सकते हैं। All right, there you have Nawab Malik's son, Faraz Malik, who's responded to those allegations, saying that Salim, the man who he's bought the land, wasn't even part of the underworld at that point of time. Now, let me try to cut across to Kamlesh Sutar to give us more perspective into this. Kamlesh, here you have Nawab Malik's son. Of course, Malik himself brushes these allegations as baseless. And then you have Nawab Malik's son saying that the man who Fadnavis calls as a terror convict was not linked to the underworld at the point that he bought the property from him. What exactly has happened? Take us through his clarification on this. Well, what Nawab Malik, Nabila, here it's saying in his clarification is that the person from whom he had bought the land, the person had given power of attorney to Shah Wali's family, and Shah Wali's family was a tenant of that property. Shah Wali Khan's father was working as a watchman in that building. That is what Nawab Malik's clarification or answer to Fadnavis's allegations is, and he says that the property was legally bought, and there is a housing society which is still there, and they were tenants. The property, usually when such transactions in Mumbai happens, there are several tenants on piece of land, and they are also the property has to be brought considering the tenants as well. So Nawab Malik says that Shah Wali's family was one of the tenants. His father was guarding that property as a watchman for several years, and since he has dealt with the family and the family from whom the land was bought, they had given the power of attorney to him. So he is trying to technically brush off the charges without speaking about the underworld links. He has said that he hasn't bought the property per se from any underworld person, but from the tenants and the person who had given the power of attorney. But Nawab Malik went ahead saying that these allegations were a damn squib, and Devendra Fadnavis on 1st of November had said that he will be dropping a bomb post Diwali. Nawab Malik said that this is not a bomb. Tomorrow at 10 a.m. in the morning, Nawab Malik says that he will be exposing Devendra Fadnavis's link with the underworld and how he alleges that Devendra Fadnavis had held the city to ransom. Now, this doesn't seem to be ending. The list is endless. We've seen new characters. New Absolutely, Kamlesh, and this is only getting murkier with Nawab Malik now slamming Fadnavis for what he said, saying that these are baseless allegations. He bought the property legally and from his tenants who had a power of attorney, so he did not buy it from anyone who had underworld links. Of course, authorities will do their job in trying to verify these statements, but Nawab Malik all set to drop a bigger bombshell. That's what he claims at 10 a.m. tomorrow. Let's see how that pans out, but for now it's a wrap. Thank you for watching.